Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Welcome to Botanica. So previously we have discussed about the various pathways of glucose oxidation. कि किस तरीके से ग्लूकोज को we have started glucose from the very beginning and we have proceeded and we have followed it in the glycolysis and then in the Krebs cycle the product of the glycolysis, which is the two pyruvates, then these two pyruvates undergoes oxidation reaction, and after that the reduction or oxidation of the pyruvates, that particular pyruvate is will feed the Krebs cycle, and then the Krebs cycle produce the NADH and FADH, which will feed the electron transport chain, and at the end we have seen the production of ATP by the process of oxidative phosphorylation, or in other words we can say that by the mechanism of chemi-osmotic coupling. So now there is as far as the oxidation of the glucose is concerned, glucose oxidation is not the single way so by which the oxidation of the glucose can be carried out. ये एक यही तरीका नहीं है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का जो हम बयान करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ही जो है ये आगे प्रोसीड होगा, बट देयर आर अल्टरनेटिव पाथवेज, और जिसमें एक पाथवे हमारे पास कौन सा है, दैट इज कॉल्ड पेंटोज फॉस्फेट pathway. This is the alternative mechanism of glucose oxidation, which we have seen previously in the glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain, where the molecule of the glucose or the sucrose in the plant, it is completely oxidized and ATPs are generated. So pentose phosphate pathway को pentose phosphate pathway क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक 6 कार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का शुगर है, और इससे मोस्टली जो हमारे पास आगे रीशफलिंग होती है मैकेनिज्म में, पाथवे में, तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं मोस्टली दे आर ऑफ 5 कार्बन. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. इनमें हम उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है. इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे नाम है. सो वी विल प्रोसीड. वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. So as we have seen, this is pentose phosphate pathway, but this particular pathway is also known as hexose monophosphate pathway or hexose monophosphate shunt. It is also called as pentose phosphate pathway as phosphogluconate pathway. So as you can see, there are the various alternative names of this particular pathway. So like the Krebs cycle, we have various names, various alternative names. So for this particular mechanism we also have a different alternative names which can be used or different books and on the internet. This particular pathway is discussed with different names. For example, it can be discussed with the pentose phosphate pathway in some website, and in some books it is discussed under the heading of hexose monophosphate shunt, and it is also mostly it is discussed as the pentose phosphate pathway, but rarely it is also called as phosphogluconate pathway, and these names are on the basis of their intermediates which are produced during this pathway. So this is an alternative pathway, as we have seen, as we have discussed in the intro, that this is the alternative pathway. So if there is as far as the pathway is concerned, the reactions or intermediates are different. As far as the products are concerned, products are different. So this is the alternative pathway to glycolysis and tricarboxylic acid cycle or the Krebs cycle for the oxidation of glucose. Normally they are about 30% or 25% of the glucose undergoes toward the pentose phosphate pathway, and the rest of the 75% or 80% of the glucose undergoes the normal glycolysis and tricarboxylic acid cycle. So it depends upon the needs of the cell. If cell needs the ATP, so this particular glucose oxidation will be carried out in the pathway of the normal pathway, which will enter glycolysis and tricarboxylic cycle, and then at the end we have electron transport chain. But if the cell needs certain other products which we discussed like the NADPH and other products, so the mechanism or the oxidation of the glucose will be proceeded through this particular pathway which we are discussing now. So, but there are some major differences between glycolysis and HMP or hexose monophosphate shunt or pentose phosphate
पाथवे। तो इन दोनों में कुछ हमारे पास मेजर डिफरेंसेस मौजूद हैं। वो सेल की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैकेनिज्म जो है, पाथवे जो है वो किस तरफ लेके जाना है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जो है, either it will be carried out through the normal process, glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain, or it has to be carried out through the hexose monophosphate shunt. So what are the differences? In glycolysis, one of our most important concern was the production of ATP. So as we have discussed in the respiration, so our first and foremost requirement is how many ATPs are produced during the reaction. So जब भी हम एक रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ग्लाइकोलाइसिस को जब कंप्लीट किया, हमने क्रेब्स साइकिल को जब कंप्लीट किया, हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं, तो आखिर में या उस रिएक्शन के या पाथवे के दौरान हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि उसमें कितने एटीपी जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, उससे कितने मॉलिक्यूल हमें एटीपी के मिल रहे हैं। जितने ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल मिल रहे होते हैं, हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर पाथवे, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज वेरी एफिशिएंट एज फार एज द एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। बट इन दिस पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, देयर इज ए नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. So in the pentose phosphate pathway, the ATPs are not produced, or the ATP is not the crux of the matter. यहाँ पे कोई एनर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना कोई एनर्जी एटीपी की फॉर्म में इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है. बट दिस इज अनलाइक द ग्लाइकोलाइसिस, इट इज वेरी डिफरेंट पाथवे, और इसमें एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है. उसके प्रोडक्ट कौन से होते हैं तो वो हम जब मैकेनिज्म अब आगे डिस्कस करेंगे. बट जो डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों पाथवेज में, these both pathways are for glucose oxidation, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and the second pentose phosphate pathway. दोनों का सबस्ट्रेट एक ही है, ग्लूकोज ही, लेकिन उनके जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, they are different, and the cell will determine कि ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज की है वो किस तरीके से होनी है. अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट है सेल को, तो वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नॉर्मल तरीके से होगी, जो स्टेप्स हमने बयान कर लिए. लेकिन अगर उसको NADPH की जरूरत है या किसी और कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो किस तरफ जाएगा, इट विल बी पेंटोज फास्फेट पाथवे. लेकिन नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इसकी परसेंटेज है, इट वेरीज. According to some books, there are 80 to 85% glucose undergoes normal oxidation process, which through glycolysis and electron transport chain, और बाकी का 10 से 15% जो है वो it goes under the pentose phosphate pathway. लेकिन it depends upon the कि कहाँ पे, कौन सी जगह पे वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है, कहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में वो लिवर में हो रहा है, वो स्किन में हो रहा है, तो ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कौन से ऑर्गन में हो रही है. तो कुछ हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं, कुछ हमारे पास ऑर्गन ऐसे हैं, लिवर हो गया, एडिपोज टिश्यूज, जहां पे उनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है. वहां पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से मोस्टली लिपिड की बायोसिंथेसिस जहां पे हो रही होती है, वहां पे पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोसेस. लेकिन जहां पे इसके जो कम होता है रिक्वायरमेंट पेंटोज फास्फेट पाथवे की, NADPH की, वहां पे नॉर्मल प्रोसेस होता है और एटीपी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. तो ये एक इंट्रो है. वी हैव सिंपली ओवरव्यू के क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एनर्जी प्रोडक्शन इज कंसर्न. इन द पेंटोज फास्फेट पाथवे हम कोई भी एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो नहीं देखेंगे, ऑल्दो वी डिस्कस इट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और एनर्जी प्रोडक्शन के हम हेड्स के अंदर ही, अंडर ही इसको बयान करते हैं. लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और किस फॉर्म में उसको यूटिलाइज किया जाता है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. और वो कैसे? सो एज द नेम ऑफ द पाथवे इंडिकेट्स, देयर आर 5 कार्बन शुगर्स, क्योंकि इसका नाम पेंटोज फास्फेट पाथवे है, एंड पेंटोज मींस 5 कार्बन शुगर्स. So as the name indicates, there are 5 carbon sugars including ribose are produced from the glucose. तो चूंकि यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, so first of all we can see there is the production of a ribose, and you can see that ribose जो है ये एक important जो है न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए जो शुगर रिक्वायर्ड होती है, या तो वो राइबोज होती है या वो क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज होती है. So as far as the फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कंसर्न्ड, तो वहां पे भी जब रिक्वायरमेंट होती है शुगर की, तो एक इंपॉर्टेंट जो इसका इंटरमीडिएट है इस पाथवे का, दैट इज राइबोज. तो वो राइबोज कहां पे जाता है, दैट पर्टिकुलर राइबोज जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है न्यूक्लिक एसिड्स के बनाने में, चाहे वो अगर वो
RNA है तो इट विल बी सिंपली राइबोज, और अगर वो DNA है तो इसको फिर डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो राइबोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स डीऑक्सीराइबोज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो हमने जैसे स्टार्ट में भी बात की थी कि एज फार एज ATP प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन जो एनर्जी है या जो उसके डेरिवेटिव्स हैं या जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनको किसी और तरीके से सेल जो है यूटिलाइज कर रहा होता है, और वो सेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जिस तरह ATP की प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इन इंटरमीडिएट की प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ देयर इज नो राइबोज, जाहिर सी बात है राइबोज की प्रोडक्शन का ये एक ही पाथवे नहीं है, लेकिन अगर राइबोज की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगी फॉर द टाइम बीइंग, अगर हम ये फर्ज कर लें कि यहाँ पे राइबोज की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में वो राइबोज विल बी अ लिमिटिंग फैक्टर, और राइबोज नहीं होगी तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन माइटोसिस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, जो डिफरेंसेस हैं, वो है अनदर। सो जैसा आपने देख लिया होगा, these are the differences between the normal glucose oxidation, like what we have discussed in the glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain, and the pentose phosphate pathway. So as far as we have discussed, ये सारे के सारे differences हैं। Compare and contrast, तो उनमें कौन कौन सी चीजें जो है वो similar हैं, कौन कौन सी different हैं। If you have been asked in the question paper or in the paper, compare and contrast between the pentose phosphate pathway and normal respiratory process, तो उसमें ये जो है these are the differences कि हमारे पास नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है, that is the pentose phosphate pathway, production of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, which simply called NADPH and not NADH। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं NADH। सिमिलरली क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं, वहां पे भी जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो NADH और FADH की फॉर्म में एनर्जी जो है उससे एक्सट्रैक्ट की जा रही होती है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल, एंड these NADH and FADH which are produced during the glycolysis and Krebs cycle, these two will further feed the electron transport chain and they act as a electron source, और इनसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। बट हियर इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अल्टरनेटिव टू इट, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। यहाँ पे NADH प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हियर इज द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। और NADPH अगर आपको याद हो, NADPH इज यूज्ड इन द केल्विन साइकिल एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ से आपको एक और चीज भी पता चल गई होगी कि NADPH जो है ये मोस्टली एनाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज हो रहा होता है, जहाँ पे किसी भी चीज की सिंथेसिस हो रही होती है, और NADH जो है कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होता है, जहाँ पे किसी भी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। And in the next session we are going to discuss the differences between NADPH and NADH in detail. For example, this is the simple structure of the NADH and NADPH. So here we have nicotinamide। अगर आप इस फास्फेट को हम रिमूव कर लें तो ये सिंपल NADH है, और अगर इसको हम फास्फेट को एक एक्स्ट्रा फास्फेट को यहाँ पे अटैच कर लें, विच इज इन द रेड कलर, तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, NADPH। जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसी फास्फेट ग्रुप में होता है, बट दिस पर्टिकुलर फास्फेट ग्रुप मेक दीज टू मॉलिक्यूल्स समवट वेरी डिफरेंट। इनका जो फंक्शन होता है डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट मैकेनिज्म में, डिफरेंट पाथवे में, वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। NADPH जो है मोस्टली वो सिंथेटिक या सिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो रहा होता है, जबकि NADH जो है ये ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन के प्रोसेस में जो है वो उसको यूज किया जा रहा होता है। सो दीज आर द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन NADH एंड NADPH। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, एज वी हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक फास्फेट का डिफरेंस ही नजर आता है कि इनमें सिर्फ एक फास्फेट का डिफरेंस है, इसमें एक फास्फेट नहीं है और इसमें एक फास्फेट मौजूद है, बट देयर आर दिस पर्टिकुलर फास्फेट विल मेक इट अ कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये जो है एक बिल्कुल ही डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव NADH। NADH इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD। ये क्या है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी, NAD की। तो NAD जब रिड्यूस होता है तो उसकी रिड्यूस फॉर्म जो है दैट इज NADH, व्हाइल NADPH जो है दैट इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP। तो इनकी जो सबस्ट्रेट है
तो इनकी जब रिडक्शन होगी, जब NADP की रिडक्शन होगी सो इट विल फॉर्म NADPH, और जब सिंपल NAD की रिडक्शन हो रही होती है तो इट विल फॉर्म NADH. सो नेक्स्ट NAD इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, तो इनकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो भी डिफरेंट है. सो दिस इज NAD प्लस, और इसकी हम जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इट विल राइट, इट कैन बी रिटन एज NADP प्लस का साइन हम उसको साथ में लगाते हैं बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. So another major difference is this particular NADH is involved in respiration and NADPH is involved in photosynthesis. तो इन दोनों reactions को आप देख सकते हैं. These two reactions are somewhat opposite to one another. As far as the photosynthesis is concerned, photosynthesis is the anabolic process. फोटोसिंथेसिस जो फूड के फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को मिला के फोटोसिंथेसिस में फूड के मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस. ये क्या है, एनाबॉलिक है, रिएक्शंस है. दीज आर द एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक रिएक्शंस. बट हियर द सेलुलर रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक. यहाँ पे ग्लूकोज की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है और उससे एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है. इसमें एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस में स्टोर की जाती है, जबकि इसमें एनर्जी जो है उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है. सो NADPH का रोल जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस में है लाइक फोटोसिंथेसिस, व्हाइल NADH इज एसोसिएटेड विद द डिग्रेडेटिव और इन द पाथवेज व्हिच आर एसोसिएटेड विद एनर्जी एक्सट्रैक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. So as far as the production and sources are concerned, so NADH produced in the glycolysis and the Krebs cycle, while the NADPH is produced in the light reaction of the photosynthesis, and NADPH is also produced here in the pentose phosphate pathway which we are discussing now. So here we have written only the light reaction of the photosynthesis because the majority of the NADPH which is produced during the cell और photosynthesis जो है, photosynthesis कहाँ पे होती है, वो plants में होती है, क्योंकि animals में photosynthesis नहीं हो रही होती, तो दे आर कंज्यूमर. तो वहां पे NADPH का जो सोर्स है वो मोस्टली इसी ग्लूकोज की या पेंटोज फास्फेट पाथवे की ऑक्सीडेशन है, और वहां पे NADPH का सोर्स भी यही पेंटोज फास्फेट पाथवे है. So next, the difference is used in the electron transport chain to produce ATP. As we have discussed, this particular NADH act as the electron source, and not only the electron, it also act as a प्रोटॉन सोर्स एज वेल, क्योंकि जब प्रोटॉन केमियोस्मोटिक कपलिंग के कॉन्सेप्ट में जब हम देखते हैं कि along with the electrons there are the pumping of hydrogen ions of the protons across the membrane. So NADH is not only serving as the electron source, but it also serves as the protons, and protons are also moved across the membranes, and this particular electrons and movement and the carrying of electrons and protons result in the production of ATP, which we call the oxidative phosphorylation, while the NADPH is used in the Calvin cycle to assimilate carbon dioxide. जबकि NADPH जो है it is used in the Calvin cycle, और उससे क्या होता है, Calvin cycle में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है. तो this is again the difference between NADH and NADPH. So as far as the structure is concerned, NADH do not contain a free phosphate group as we have seen in the previous slide. तो उसके NADH में हमारे पास फ्री जो है ग्रुप वो फास्फेट का नहीं होता, जबकि NADPH में एक फ्री फास्फेट ग्रुप होता है. There is a free phosphate group in the 2' position of the ribose which is attached to the adenine moiety. So here we have, so that's why its name is also different, NADPH, और यही एक फास्फेट ग्रुप ही है which make these two molecules different, और इनको हम यहाँ पे जब कंपेयर कर रहे हैं तो इनके functions भी totally different हैं. different तो क्या है, these are opposite functions. So it is involved in this is the, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, so it is somewhat ये जो ये है अपोजिट है. कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, these are respiration are the catabolic processes and anabolic processes are the NADPH, और यहाँ पे है so less than abundant than NAD plus, तो इसकी जो abundancy है, जो requirement है, it is different, so most abundant inside the cell. So these are the differences, unlike this particular difference. ये उनका शफल हो गया है उनका जो सेंटेंसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ तक इसकी चीज जो है वो कंफर्म है. ये चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं कि वो कौन से प्रोसेसेस के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, अदर दे आर एनाबॉलिक प्रोसेसेस और दे आर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस. बिकॉज NADPH जो है इट इज लिपिड की जब बायोसिंथेसिस हो रही होती है तो NADPH का वहां पे भी रोल है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेसेस भी मोस्टली क्या होता है, NADPH इज यूज्ड. So a more important difference is the way these two coenzymes functions. So NADH और NADPH को coenzymes भी कहा जाता है. So NADH is produced in the oxidative reactions that give rise to ATP.
तो NADH कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहा होता है, वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? वहां पे निकोटीनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है और उससे ATP जो है वो जनरेट होती है. Well, NADPH is a reducing agent. It is a reducing power and in biosynthesis. So in the anabolic processes, which by its very nature is a reductive process. So NADH is produced in the oxidative reactions, while the NADPH is a reducing, and it is a produced in the reductive processes. For example, as NADPH play an important role in photosynthesis and also in biosynthesis of lipids. So these are anabolic processes. Photosynthesis में भी food के molecule की synthesis हो रही होती है अगर हम plants की बात करें. लेकिन अगर हम बात करें lipids की, लिपिड में हमारे पास क्या है? दीज आर द एनिमल्स में हम लिपिड्स की बात भी कर सकते हैं कि लिपिड्स की सिंथेसिस जब हो रही होती है बायोसिंथेसिस में, NADPH इज यूज्ड टू सिंथेसाइज लिपिड्स और उससे दिस पर्टिकुलर NADPH एक्ट एज ए रिड्यूसिंग पावर. So as far as the pathway is concerned, the pathway starts with the glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, जैसा कि हमने देखा था, in the glycolysis, glucose is first, in the first step, glucose is converted to glucose 6-phosphate. So here, this particular pathway starts from glucose 6-phosphate. So as such, no ATP is directly utilized or produced in HMP pathway. HMP is short form of hexose monophosphate shunt या hexose monophosphate pathway. It is a unique multifunctional pathway since there are several interconvertible substances produced which may proceed in different directions in the metabolic reactions. तो यहाँ पे पेंटोज फास्फेट पाथवे का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल के लिए वो ये है, this is the multifunctional pathway. So as we have discussed in the glycolysis, we have started from the glucose, and in the glycolysis we have ended up with the 2-pyruvate molecules. And then we have followed those 2-pyruvate molecules for oxidation in the mitochondria, and then those 2-pyruvate molecules converted to acetyl coenzyme A, and acetyl coenzyme A will feed the Krebs cycle, and after the Krebs cycle we have to proceed towards the electron transport chain. So this is the series of reactions starting from one point and ending up with other. तो मोस्टली क्या होता है कि इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं ये एक ही सीमत में जा रहे होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ ही जा रहे होते हैं. ऑल्दो दोज इंटरमीडिएट्स कैन बी यूज्ड, बट दिस पर्टिकुलर पेंटोज फास्फेट पाथवे इज अ मल्टी फंक्शनल पाथवे. इसमें जो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं सारे के सारे, दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस. ऐसा नहीं है कि उनको एक ही तरफ एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक एंड पॉइंट होगा, इनके दरमियान में कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो किसी और रिएक्शन में यूज नहीं किया जा सकता. नो, दिस इज नॉट द केस. As far as the pentose phosphate pathway is concerned, this is the multifunctional pathway. So since there are several interconvertible substances, तो इसमें बहुत सारे जो reactions हो रहे होते हैं, those are reversible reactions. तो उनमें जो intermediates produce होते हैं, they are interconvertible. तो सेल को या प्लांट को या एनिमल को जो भी इंटरमीडिएट चाहिए होता है तो फौरन से उसको क्या किया जाता है, उसको से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर मे प्रोसीड इन सेवरल डायरेक्शन इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस.